Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today's session is here that English words meaning session, and this session is guys very important for you because in this session I'm going to share with you 25 daily use English vocabulary. So with the help of this vocabulary you can improve your English and also you can easy your conversation. Okay, if you are doing conversation with someone, so with the help of this vocabulary your conversation will be very easy. You can use this vocabulary in your daily life conversation. This vocabulary is guys very important for you. In this video, whatever vocabulary I'm going to share with you, all that vocabulary is very important for you. You can improve your English through this vocabulary. As you all knows that guys, how vocabulary is very important for improve English. Okay, if you really want to improve your English, so vocabulary is very important. Without vocabulary you can't improve your English. अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहले आपको बहुत सारा vocabulary इकट्ठा करना पड़ेगा. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू लॉट्स ऑफ vocabulary, lots important 25 vocabulary. Through this vocabulary you can improve your English, you can make your conversation very easy, and guys you can through this vocabulary you can create lots of sentences. Okay, and all that sentences you can use in your daily life conversation, also use in this vocabulary. So now are you excited to learn that vocabulary? Okay, so ready, let without any further let's get start into the video. इस कितने important vocabulary है. As you can see that on your screen, first vocabulary is here that haklana. Haklana English you can say that is stammer. Okay, stammer it means haklana. Guys, pronunciation is also important. Without pronunciation, if you are thinking in your mind that guys, without pronunciation you can learn you words meaning, no guys. I want to say that guys, if you are doing correct pronunciation, if you want to convey your message to the other person, okay, and your pronunciation is here incorrect, okay, you are doing incorrect pronunciation, so आपका जो मैसेज है ना सामने वाला तक गलत ही जाएगा, वो सही नहीं जा सकता है. ओके, क्योंकि आपने गलत प्रोनाउंस किया. जैसे कि एक प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं. ठीक है, आपने कुछ और बोल दिया प्रोनाउंसिएशन, सामने वाले समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या बोला है. तो प्रोनाउंसिएशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन. ओके, तो आप वर्ड मीनिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन ही वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सीखिए. वर्ड मीनिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ध्यान दीजिए. लिसन टू मी वेरी केयरफुली सो दैट योर वर्ड मीनिंग्स, vocabularies and pronunciation also can improve. Okay, so learn and watch this video till the end without skip, and don't forget like, share and subscribe guys. Okay, next words meaning is here that फुसफुसाना. फुसफुसाना को इंग्लिश में आप कह सकते हैं विस्पर. विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है. नेक्स्ट इज दैट गाइस कपकपाना. कपकपाना को आप इंग्लिश में शिवरिंग कह सकते हैं. ठीक है, शिवरिंग मीन्स कपकपाना होता है. अब देखो कितने लोग यहाँ पे इनकरेक्ट प्रोनाउंस करेंगे. शिवेरिंग कोई बोलेंगे, कोई शिबी बोलेंगे, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, बट सही प्रोनाउंसिएशन इसका शिवरिंग होता है. इसमें इट मीन्स होता है कपकपाना. ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं नेक्स्ट है लड़खड़ाना. लड़खड़ाना को इंग्लिश में टॉटरिंग कहते हैं. टॉटरिंग इट मीन्स लड़खड़ाना. नेक्स्ट इज नशे में झूमना. नशे में झूमना इन इंग्लिश यू कैन सी दैट टिप्सी. टिप्सी TIPSY. टिप्सी मीन्स नशे में झूमना. नेक्स्ट इज दैट गैस बहकाना. बहकाना इन इंग्लिश मिसगाइड. लाइक बोलते हैं ना कि इसने इसको मिस गाइड कर दिया है. मिसगाइड इसमें बहका दिया है. अपन मोस्टली यूज करते हैं कन्वर्सेशन में कि यू मिसगाइड हिम. ओके, इट मीन्स तुमने उसको बहका दिया. ठीक है, और नेक्स्ट देखिए लंगराना. लंगराना को इंग्लिश में आप लैम्पिंग बोल सकते हैं. लिम्पिंग मीन्स लंगराना होता है. ठीक है, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं सुधारना. सुधारना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं इम्प्रूव. इम्प्रूव इट मीन्स सुधारना. इन हिंदी यू कैन से दैट सुधारना, इन इंग्लिश यू कैन से दैट इम्प्रूव. नेक्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी. अपन ताला कितने बार खोलते हैं, लगाते हैं, तो अपन ऐसे बोलते हैं ना ताला खोल दो. ठीक है, ताला खोलना को इंग्लिश में बोलते हैं अनलैच द लॉक.
अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अनलैच द लॉक इट मीन्स ताला खोल दो। नेक्स्ट इज दैट गाइस राज खोल दो। वाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग राज खोल दो। ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं, रिवेल द सीक्रेट। रिवेल द सीक्रेट इन इंग्लिश राज खोल दो। नेक्स्ट इज दैट जूते का फीता खोल दो। जूते का फीता खोल दो इंग्लिश यू कैन सी दैट अनटाई द शो लेश। ओके, अनटाई द शो लेश इट मीन्स जूते का फीता खोल दो। नेक्स्ट इज दैट पानी की बोतल खोल दो। पानी की बोतल खोल दो इन इंग्लिश यू कैन सी दैट ट्विस्ट ऑफ द कैप। ट्विस्ट ऑफ द कैप। ट्विस्ट ऑफ द कैप इट मीन्स पानी का बोतल खोल दो। अगर किसी को बोलते हैं ना पानी का बोतल, तो उसको बोल सकते हैं हिंदी की जगह इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ट्विस्ट ऑफ द कैप। इट मीन्स पानी का बोतल खोल दो। ठीक है, नेक्स्ट है नल खोल दो। ठीक है, नल खोल दो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं टर्न ऑन द टैब। टर्न ऑन द टैब, अपन नल खोल दें अगर आप किसी को बोलते हैं कि वहाँ के नल खोल दो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं टर्न ऑन द टैब देयर। ओके, टर्न ऑन द टैब इट मीन्स नल खोल दो। नेक्स्ट है पर्दा खोल दो। वाह, पर्दा खोल दो कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं ड्रॉ बैक द कर्टन। ड्रॉ बैक द कर्टन इट मीन्स पर्दा खोल दो। अगर आपको किसी को बोलना है कि पर्दा खोल दो इंग्लिश में फटाफट बोल सकते हैं ड्रॉ बैक द कर्टन। ठीक है, नेक्स्ट है मुट्ठी खोल दो। मुट्ठी खोल दो को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अनक्लेंस द फर्स्ट। अनक्लेंस द फर्स्ट इट मीन्स मुट्ठी खोल दो। नेक्स्ट है वहाँ पर। वहाँ पर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ओवर देयर। ओके, ओवर देयर इट मीन्स वहाँ पर, जैसे कि मैं वहाँ पे गई थी तो आप बोल सकते हैं आई वेंट ओवर देयर, मैं वहाँ पे गई। ओके, नेक्स्ट इज दैट अचानक। अचानक को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन इट मीन्स अचानक। एंड नेक्स्ट है पहली बार। पहली बार को आप इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे अपन यूज़ करते हैं ना, पहली बार इसने ऐसा बोला। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड लाइक दिस। ओके, बिफोर इसने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला था, वो पहली बार ऐसा बोला है, तो आप पहली बार के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उस दिन। उस दिन को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन वो खुश था। दैट डे ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके, या फिर खुश रहा करता दैट डे ही यूज टू वेरी हैप्पी, सो दैट उस दिन दैट डे। नेक्स्ट इज दैट हर किसी को। हर किसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू एवरी वन। ठीक है, टू एवरी वन इट मीन्स हर किसी को। ओके गाइज, so guys today's session is ends here. I hope you all are liking and enjoying my video. If you likes my video, so guys don't forget like, share and subscribe. We will meet very soon in next video with new session with lots of vocabulary guys. Till then guys, bye bye, take care. I must want to say that one thing guys, whatever vocabulary I have shared in this video guys, please all that vocabulary in your daily life use all that vocabulary in your daily life conversation so that you can remember it for a long time. Okay guys, so thank you for watching. Till then guys, bye bye, take care, stay happy and healthy. Thank you for watching.